اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں اور لائک کریں۔ آج کا واقعہ بازار شام اور دربار شام کے واقعات میں سے ایک ہے، جہاں پر حضرت امام سجاد علیہ السلام کو یزید ملعون کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جناب حضرت سید سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس وقت ہم دربار میں پہنچے تو یزید ملعون اپنے بدبخت روسا کے ساتھ دسترخوان پر کھانا زہر مار کر رہا تھا۔ ہمیں اس ملعون کے سامنے لے جا کر کھڑا کیا گیا تو اس ملعون نے اپنا ایک آبرو اٹھا کر گوشہ چشم سے ہماری طرف دیکھا اور اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے پوچھا، من ھذا، یہ کون ہے؟ اس وقت ایک ملعون نے اسے بتایا، یہ امام مظلوم علیہ السلام کے فرزند ہیں، جن کا نام پاک علی علیہ السلام ہے۔ اس نے سارے دربار پر ایک تیرانہ نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ دربار کے دروازے کے قریب ایک حبشی جوان کھڑا ہے، جس کے ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے ہیں، جبکہ وہ آنکھوں سے نابینا ہے۔ اس کے رخسار پھٹے ہوئے ہیں اور دونوں زخمی رخساروں سے خون رس رہا ہے۔ لشکر شام کا ایک فوجی اس کے پیچھے کھڑا ہے، جس نے اپنے نیزے کی نوک سے اس کی گردن پر زور دیا ہوا ہے، جبکہ وہ حبشی مسلسل رونے میں مصروف ہے۔ فرعون شام نے یہ منظر دیکھ کر اس فوجی سے پوچھا کہ یہ شخص تو نابینا ہے اور ہے بھی شاید غلام، تم نے اسے کیوں قید کر رکھا ہے؟ یہ تو بھاگنے کے قابل بھی نہیں ہے اور نہ ہی لڑنے کے قابل ہے۔ دوسرا یہ کہ تم اس کی گردن سے نیزے کی نوک بھی نہیں ہٹا رہے۔ میں نے تو حکم دے دیا ہے کہ ان تمام اسیروں کی رسیاں کاٹ دو، جبکہ تم نے ابھی تک اس کی رسیاں بھی نہیں کاٹی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس شامی ملعون نے جواب دیا کہ اس حبشی کو ہم نے اس لیے سختی سے باندھا ہوا ہے کہ اگر ہم اسے آزاد کرتے ہیں تو یہ منہ پر ماتم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگرچہ اس کے رخسار زخمی ہیں، مگر پھر بھی یہ ماتم کرنے سے باز نہیں آتا، اور اس کی گردن سے اگر نیزہ ہٹاتے ہیں تو یہ شہزادہ علی اکبر پاک کا نام لے کر ایسے کربناک بین کرتا ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اونٹ بلبلا اٹھتے ہیں، انسانوں کے جگر پھٹنے کو آ جاتے ہیں۔ فرعون شام نے کہا، اسے میرے پاس لے آؤ، میں خود اس سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون سا ایسا صدمہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ماتم اور بین کرتا ہے۔ وہ شامی فوجی اس حبشی غلام کو نیزے کی نوک سے دھکیلتا ہوا ملعون شام کے سامنے لے آیا۔ ملعون شام نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے اور تم رو کیوں رہے ہو؟ حبشی جوان نے روتے ہوئے جواب دیا، اے ملعون ازل، میرا نام سدیف ہے اور میں مولا امام حسین علیہ السلام کا پروردہ ہوں۔ ہم شکل پیمبر شہزادہ علی اکبر کا غلام ہوں۔ میں ایسا بد نصیب ہوں کہ اپنے آقا و مولا کی شہادت کے بعد ابھی تک زندہ ہوں۔ ملعون شام نے پوچھا، سدیف، یہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ جناب سدیف نے روتے ہوئے فرمایا کہ شاید تم میرے جذبات کو نہ سمجھ سکو، مگر حقیقت یہ ہے کہ میری آنکھوں کا حقیقی نور تو وہی پاک شہزادہ اکبر تھا کہ جو تمام آل محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ انہیں زین سے اترتا دیکھ کر میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا۔ کاش کہ میں کچھ دیر پہلے اندھا ہو جاتا کہ انہیں شہید ہوتے ہوئے نہ دیکھتا۔ ملعون شام نے کہا کہ شہزادہ علی اکبر میری پھوپھی ذات بہن کا جوان بیٹا تھا۔ میں ان کی زیارت تو نہیں کر سکا، مگر ان کے حسن و جمال کی تعریف بہت سن چکا ہوں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ خاندان رسالت کے تمام افراد کو اس نوخیز شہزادے کی حسین جوانی پر بہت ناز تھا۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ پاک پھوپھی کو اس لال کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ 18 سال تک اس لال کو انہوں نے پردوں
गोदों में पाला था। तुम क्योंकि उन्हीं के गुलाम हो, इसलिए मुझे कुछ उनके बारे में मजीद बताओ कि वो पाक शहजादा कितना खूबसूरत था। जनाब सुदैफ ने जवाब दिया कि उनके बेऐब हुस्न को अल्फाज में बयान करना मुमकिन ही नहीं है। ना ही ऐसे अल्फाज हैं और ना ही मेरे पास ऐसी जबान है कि जिससे मैं शहजादा अली अकबर के हुस्न बेमिसाल की तारीफ कर सकूं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मौला इमाम हुसैन का ये फर्जंद इतना खूबसूरत और हसीन था कि लाखों यूसुफ इसकी नालैन चूमना फख्र समझते थे। उनकी पाक जुल्फ़ा अंबरी के हर पेच खम में लैल व नहार के हजारों कुरान पोशीदा थे। उनकी जेर लब मुस्कुराहट तमाम आले नबी और खसूसन गहरे अतर की पाक मस्तूरात के दिलों के लिए हकीकी चैन और सकून और करार थी। इसी बात का तो अफसोस है कि ये तो उसके सेहरे पहनने का मौसम था, जबकि वो अपने ही खून से गुस्ल करके नमाज नुसरत को अव्वल वक्त में अदा फरमा गए हैं। मलऊन शाम ने कहा, तुम मुझे करबला के हालात सुनाओ। इमाम मजलूम ने अपने लख्त जिगर को जंग की इजाजत कैसे दी थी, इन्हें रुखसत कैसे फरमाया, वो खयाम से कैसे रवाना हुए, इनका अंदाज जंग कैसा था, फिर कूफियों ने उन्हें जीन से कैसे उतारा। जनाब सुदैफ ने फरमाया कि रोजे आशूर मैं मुसलसल अपने आकाजादे के साथ रहा। जिस वक्त पाक शहजादे ने अपने पाक बाबा से जंग की इजाजत ली तो मैं आकर उनके कदमों में गिर पड़ा। मैंने रो कर अर्ज किया, आकाजादे आप मैदान में ना जाएं, पहले मुझे इजाजत दें, आपसे पहले मैं आपके पाक बाबा पर अपनी जान फिदा करना चाहता हूँ। मेरी ये बात सुनकर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और फरमाया कि सुदैफ, आपकी निस्बत हमारा अपना बाबा जान पर फिदा होने का हक ज्यादा बनता है। हाँ, हमारे जाने के बाद जहाँ तक मुमकिन हो सके हमारे मजलूम और ज़ईफ बाबा की नुसरत और मदद करना और ख्याल भी रखना, क्योंकि मेरे बाबा ज़ईफ हैं और मुझे यकीन है कि मेरी जवानी के सदमे को ये ज्यादा देर बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। तुम हमारे बाद एक तो हमारी सितम रसीदा मजलूम बाबा की हिफाजत करना और दूसरा उन्हें तसल्ली और दिलासा भी देना और अर्ज करना कि जवान फरजान तो होते ही इसीलिए हैं कि दुख की घड़ी में वालदैन पर अपनी जान कुर्बान कर सके। आप इस बात को जिगर का रोग ना बनाए। जनाब सुदैफ ने आह सर्द भर कर कहा कि मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ कि ऐसे आकाजादे को शहीद होते देखने के बावजूद भी जिंदा हूँ। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इमाम मजलूम ने अपने जवान बेटे को बड़ी मुश्किल से इजाजत बख्शी। शहजादा पाक जिस वक्त मैदान में तशरीफ लाए तो 3 दिन की प्यास के बावजूद उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जंग की। मैं उस वक्त एक टीले पे खड़ा था और उनकी जंग देख रहा था। मैंने देखा कि एक मलाउन ने अजल ने उन पर छुप कर नेज़े का वार किया। मेरे आकाजादे ने रजा इलाही का तोहफा समझते हुए इसे अपने सीने पर कबूल फरमाया। शहजादा पाक के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई, तलवार दाएं तरफ गिरी, अमामा बाएं जानिब गिरा। भागते हुए घोड़े ने अपने कदम रोके। शहजादा पाक जमीन की कोच पर झुक गए। उन्होंने घोड़े से फरमाया कि मुझे जल्दी खयाम में ले चलो। जालिम का वार ऐसा शदीद था कि शहजादा जीन पर संभल नहीं सके। उन्होंने फौरन अपनी बाहें घोड़े के गले में डाल दी और ऐसा ऐसा आवाज दी, बाबा जान, बेटे का आखिरी सलाम कबूल फरमाए। जनाब सुदैफ कहते हैं कि जिस वक्त मैंने ये मंजर देखा तो मैं फौरन मैदान की तरफ दौड़ा। उस वक्त शहजादा पाक पर गिश तारी था। घोड़ा फौज में दौड़ रहा था, हर तरफ हजूम था, किसी तरफ से भी रास्ता नहीं मिल रहा था। कोई मलून शबीह पैगंबर समझकर उनके हाथ चूम रहा था, कोई कदम मुबारक चूम रहा था। अचानक घोड़े को रास्ता मिला तो वो खयाम की तरफ भागा, मगर उस वक्त शहजादे पाक की हालत ये थी कि उनकी आंखें बंद थीं, बाएं घोड़े की गर्दन में थीं और जिस्म अतर जीन से नीचे ढलक चुका था। अभी खयाम की पहली कैनात 20 कदम दूर थी कि शहजादे पाक के हाथ घोड़े की गर्दन से छूट गए। मैंने पहुंचने की कोशिश तो बहुत की, मगर जिस वक्त मैं उनके करीब पहुंचा तो वो शहजादा अली अकबर के आखिरी लम्हात थे। मुझे वो मंजर कयामत तक नहीं भूल सकता कि उनके सीने अतर से खून उछल कर बह रहा था। उनके खूबसूरत घुंघराले बाल खाक और खून में तैर रहे थे। घोड़ा कुछ दूर जाके वापस आ चुका था और शहजादा पाक दोबारा घोड़े की गर्दन में भैं ढालने की कोशिश कर रहे
थे और फरमा भी रहे थे, अकाल मुझे खयाम में ले चल, मेरी पाक फुफी मेरा इंतजार फरमा रही होगी। मुमकिन है कि वो मैदान में आ जाएं, मेरे पाक बाबा भी ज़ईफ हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके मैदान में आने से पहले तुम मुझे खयाम में पहुंचा दो। शहजादे पाक ने दोबारा बाहें अकाल के गले में डाली, मगर जूं ही घोड़ा रवाना हुआ तो बाहें छूट गईं। जमीन करबला कांप उठी। मैंने दौड़कर पाक शहजादे को संभालने की कोशिश की। इधर खयाम से चंद तुरात बरामद हुई। काश कि मेरी आंखें ना होती और मैं मंजर ना देख सकता। मैंने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया और मुंह पर मातम करना शुरू किया। फिर मुझे होश नहीं रहा। मातम के जोश में मेरी दोनों आंखें मुअज़्ज़मा कौनैन बीबी के नूर नजर पर कुर्बानी पेश करने के लिए बहर आ गईं। मेरी आंखें तो कुर्बान हो गईं, मगर फिर भी मुझसे पाक मखदूरात अस्मत और तहरात के बैन बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। मैं मातम में मसरूफ था कि इमाम मजलूम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जवान बेटे की लाश से अलहदा ले गए। मैंने उनके कदमों पर गिर कर इल्तिजा की, आका मुझे जंग की इजाजत दें। मैं अपने आका का इंतकाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा दिल फटा जा रहा है। इमाम मजलूम ने मुझे अपने सीने से लगा लिया, प्यार किया, फिर फरमाया कि मैं तुम्हें इस हालत में कैसे जाने दूं? तुम तो पहले ही मेरे नूर चश्म पर अपनी आंखों को कुर्बान कर चुके हो, और मैं किसी नाबीना को कैसे मैदान में भेज दूं? मुझे शर्म आती है। जिस वक्त सुदैफ यहाँ पहुंचा तो हाय मेरे जवान आका कहकर जमीन पर गिरे। उसकी ये कर्बनाक और जिगर सोख्ता आवाज मलौन शाम से भी बर्दाश्त न हुई और उसने भी रोते हुए अपने मुंह पर मातम शुरू कर दिया। जनाब सज्जाद ने दौड़कर सुदैफ का सर अपनी आगोश में लिया और उस बावफा गुलाम के रुखसारों पर अपने रुखसार रख दिए और रोते हुए फरमाया कि तुम्हारे रुखसारों के एक एक जख्म पर ये सज्जाद लाख बार कुर्बान। मुझे आपके रुखसारों में से अपने जवान भाई शहजादा अली अकबर का खून जारी होता हुआ दिखाई देता है। फिर फरमाया, दस्तूर जमाना है कि अपने प्यारों की हर चीज प्यारी होती है और आप तो मेरे जवान भाई की एक निशानी है। आपकी ये हालत देखकर भाई की शहादत का सदमा फिर से ताजा हो गया है। इस वक्त दरबार यजीज मलाउन में हाय अकबर की सदाएं बुलंद हुई। बन्नू उमैया की औरतों में गिरिया और मातम का कुराम बपा हुआ। जनाब सज्जाद ने जनाब सुदैफ के रुखसारों पर बोसा देते हुए फरमाया कि जवान भाई की तरह आप भी मुझे आलम में गुर्बत में छोड़ कर जा रहे हैं।